Good morning, student. I, Kinnari Dave from Ambi Patel English Medium School, welcomes you all in Standard 11, Chapter number 2, Structure of Atom, Part 4. Student, till the time we have studied the discovery of proton, electron and neutron, and about the atom we discuss. Now in the part 4 of this, as we know, the atom is having not only the proton, electron and neutron, but some of the non-particles are also there along with that subatomic particles. But the introduction or the importance of that subatomic particle जितना इसका नहीं है, पर फिर भी it is also a very important part for the study the structure of atom. जब हम इतना सारा structure of atom के बारे में या atom के बारे में जान ही रहे हैं स्टूडेंट, तो उसके अंदर के जो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसके बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी बनता है स्टूडेंट. Okay, just fast level revise. The electron was discovered by, student just reply. Okay, very good. And due to the another name of that is cathode ray discharge tube. Another name is also the cathode rays also. ठीक है स्टूडेंट्स, पहले कैथोड रे के नाम से ही वो जाना गया था, बाद में उसका मास जो है और E/m रेशियो जो है वो सेम आने की वजह से देन द थॉमसन हैज गिवन द नेम दैट इज एन इलेक्ट्रॉन. द सेकेंड डिस्कवरी इज डन बाय दैट इज प्रोटॉन एंड उसका जस्ट ऑपोजिट एक्सपेरिमेंट किया. इन प्लेस ऑफ कैथोड रे the rays from anode follows and that is given the name anode rays, and then finally also the name was given by Goldstein, it is a proton. Then the Chadwick also just started thinking some positive charge, some negative charge, then there may be some of the any other fundamental particle may be present, and the scientists started doing the experiment, and finally in 1932 the Chadwick has given the some particle which is having the mass which push the proton out of the paraffin strip and allows to just beam on the screen. So that is the neutron. तो ये सब हमारे एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है. टुडे विल स्टडी अबाउट द नॉन फंडामेंटल पार्टिकल. जस्ट ब्रीफिंग ज़रूरी है बिकॉज इट मे बी आस्क इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. And then after discovery of proton, electron and neutron, the scientists have started giving the atomic model one after the another, and who is the first one suggested the primary basic atomic model, and why its model is to be cancelled out. That is our today's part 4 topic. So students, let us say at the board the standard 11 unit number 2 structure of atom. Today about the non fundamental particles. स्टूडेंट्स, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं पॉजिट्रॉन के बारे में. पॉजिट्रॉन इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन नाम ही ऐसा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन. So from the name you have to just remember that it is a positive electron and the symbol may be this is a atomic mass and it is about atomic number. So that is 1:0 or we can say that E plus. इलेक्ट्रॉन के लिए E माइनस लगाते हैं, यहाँ पर 0 1 E. This positron was discovered by Anderson in 1932. Along with the neutron discovery, this was also discovered by Anderson. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका नाम पॉजिट्रॉन दिया और उसका जो सिंबल है वो E माइनस के बदले में E प्लस दिया. तो देयर मे बी ए सम रिलेटिविटी with the mass and charge
of this positron with the electron also. ये हमें भी समझना चाहिए, है ना स्टूडेंट. दिस इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि नाम पॉजिट्रॉन है, उसका सिंबल ई प्लस है, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका मास और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का मिलता जुलता होना चाहिए. एंड यस, इट इज करेक्ट स्टूडेंट. मास इज सेम एज इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, एंड दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम. तो दोनों का मास सेम है. अब चार्ज स्टूडेंट, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? Charge on electron, that is okay, very good, 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. That is the charge on electron, and the same charge of we have the proton. But what is the difference between charge of electron and proton? Last video में हमने वो बात पढ़ी थी student. What is the difference between the charge of both electron and proton? Charge is proton and electron both is having the same charge, 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb for the electron also, and for the proton also the same charge. And what about of the charge of neutron student? Good, it is having the zero charge because neutron is a neutral. अब यहाँ पर पॉजिट्रॉन का चार्ज की बात करते हैं. जैसे पॉजिट्रॉन के ऊपर का सारी उसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन जितना है, तो चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होना चाहिए. बट द डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ई माइनस एंड ई प्लस. सो यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 while in positron is minus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. This is the डिफरेंस. इलेक्ट्रॉन के चार्ज में और पॉजिट्रॉन के चार्ज में आगे माइनस की साइन है. दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये माइनस चार्ज लेके चल रहा है स्टूडेंट. तो माइनस चार्ज है, उसका मतलब इट इज वेरी अनस्टेबल, और अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई इट जस्ट fastly combine with the electron and produce the gamma rays. So positron is unstable, combine with electron and produce gamma rays. And student, X-ray और gamma rays जो है penetrate करते हैं बॉडी के अंदर, मेटल के अंदर, उसके बारे में आपको पता ही है. सो दैट्स वाई पॉजिट्रॉन इसका एक सब एटॉमिक पार्टिकल के अलावा का नॉन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हमने पढ़ा. देन स्टूडेंट, अदर देन द पॉजिट्रॉन, some other non-fundamental particle which is known as meson. Meson was discovered by Yukawa in 1935, just after the 3 years of the discovery of neutron and positron. Now सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट यहाँ पर मेसॉन के लिए. मेसॉन possess the 3 types of charges. The first one, it is known as the pi meson, then the second one is known as the mu meson, and the last one it is a pi neutral meson. There are the 3 charges, 3 types of charges are present on the meson. The first one, just write down if you want to write student, then it is known as pi meson, then mu meson, and the third one is a neutral meson, and that's why the charge on this is a 0. So this is a new meson. Now the first, the pion meson means which is known as pions, क्योंकि pi meson, so known as pions. And this pions की characteristics क्या है? This pion says something about the stability of nucleus. न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में अगर हमें कोई बताता है तो वो है पायोन्स. सो पायोन सेज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस.
देखो स्टूडेंट्स, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फिर भी दिस इज अ टेकिंग पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नाउ यहाँ हमने मास और चार्ज की बात की, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द मास ऑफ द मेसॉन ऑल्सो. स्टूडेंट, मेसॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर है. और कितना ज़्यादा हैवियर मीन्स 200 टाइम्स मोर वेट हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन. सो द मास ऑफ द मेसॉन इज 200 टाइम्स ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन से हैवी है तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या हो सकता है? जस्ट थिंक स्टूडेंट, opposite. Good. So meson is heavier than the electron but lighter than the proton. How many times it is heavier, student? Good. 200 times it is heavier. So just write down about this also in your notebook, and then I'll just give you some another non-fundamental particle also. Students, just write it down. स्टूडेंट, आपको ये साथ साथ में पढ़ते भी जाना है, लर्न करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मतलब 1 साल के बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तब तक आप भूल जाते हो, अभी आपके पास सब कुछ याद होता है. द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रिनो. The third subatomic particle is neutrino, and this particle is having mostly zero charge and no mass. मीन्स इसका चार्ज भी नहीं है एंड मास भी नहीं है. So neutrino, that's why it is known as neutrino. That is the one other subatomic particle. Afterwards, the fourth one, it is known as antiproton. ये भी वर्ड के ऊपर से स्टूडेंट्स आप क्या समझ सकते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज एंटी प्रोटॉन. द वर्ड इटसेल्फ सेज दिस अबाउट द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज. एंटी प्रोटॉन का मास जो है दैट इज 1.673 into 10⁻⁻24 gram. This is the mass of antiproton. Student, what is the mass of proton? Mass of proton is 1.673 into 10⁻⁻27 gram. और एंटीप्रोटॉन का मास जो है वो है -24 ग्राम. सो आप देख सकते हो इसके ऊपर से ही स्टूडेंट्स कौन आपको भारी लग रहा है? कौन भारी लगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड. -24 से -27 बिगर है. ओके, अब हम जाते हैं इसके मास के बाद में चार्ज के ऊपर. सो चार्ज ऑफ एंटीप्रोटॉन इज, प्रोटॉन का चार्ज क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन? व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट? चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अभी हमने पढ़ा
1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। सो ये एंटी प्रोटॉन है तो क्या होगा यहाँ माइनस, है ना। चार्ज ऑफ एंटी प्रोटॉन इज सेम लाइक द चार्ज ऑफ positron. It is also opposite than the proton. Mean sign is minus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब, जो हमने आगे पॉजिट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में भी अंडरस्टैंड किया था। So this 4 are the non-fundamental subatomic particles, student. Hope so you understand it clearly. अब हम जाते हैं थॉमसन, रुथरफोर्ड जैसे साइंटिस्ट ने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया और हमें वन आफ्टर अनदर एटम का स्ट्रक्चर मिलना शुरू हुआ है। तो द फर्स्ट बेसिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डैश। हु, किसने प्रपोज किया था सर स्टूडेंट फर्स्ट बेसिक मॉडल? बाय जे थॉमसन। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है वो बेसिक मॉडल है जिसके लिए आज हमें पढ़ना है। तो जस्ट यू राइट डाउन दिस एंड देन विल गो विद द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। Students, may I rub the board now and we'll go with the Thomson atomic model. स्टूडेंट्स, आप सबने वाटरमेलन देखा है, खाया भी होगा, है ना। पर अभी तो सीजन नहीं है ना। ये तो किसके सीजन है स्टूडेंट? मैंगो की, रास्पबेरी की, फिर बनाना। उसमें वाटरमेलन कहाँ से लाए मैडम आप? अभी कहाँ से वाटरमेलन हम खाएंगे? अभी नहीं खा सकते हो तो कोई बात नहीं, याद तो करो वाटरमेलन कैसा होता है स्टूडेंट। हाउ इट लुक्स। वाटरमेलन इज अ स्फीयर, correct? So we are talking about the atom. Atom is also a sphere. वॉलीबॉल देखा है आपने, क्रिकेट का बॉल देखा है, टेनिस बॉल भी देखा हुआ है। साइज इमेजिन करो स्टूडेंट्स। व्हाट इज द साइज ऑफ द वॉलीबॉल? सच अ बिग साइज। व्हाट इज द साइज ऑफ द टेनिस बॉल? जस्ट स्मॉल वन। अब उसमें वाटरमेलन कहाँ से आया मैडम? आप तो कभी बॉल पे लेके आ जाते हो, मतलब कि ग्राउंड में लेके जाते हो, कभी आप किचन में लेके आ जाते हो। क्या करें स्टूडेंट, समझाना जो है आपको इजीली, है ना, इजी वे में समझाना है तो फिर यही सारा तरीका लेना पड़ेगा। ओके, सो वाटरमेलन, जब हम वाटरमेलन को बीच में से कट करते हैं स्टूडेंट, तो वाटरमेलन, व्हाट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द वाटरमेलन? ग्रीन कलर। एज यू कट इट द वाटरमेलन into the two pieces, inside the part which you are eating, juicy part, it is of red color, correct? And the sheets are attached, sheets are arranged in such a beautiful manner. Students, देखने को मजा आता है। इतने अच्छी तरह से शीट वाटरमेलन के लाल और ब्लैक है ना स्टूडेंट। रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी मस्त लगता है। अब मैडम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाओ ना, कहाँ जा रहे हो आप? तो बेटे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं थॉमसन ने जो हमें प्रपोज किया था बेसिक एटॉमिक मॉडल का, उसका हम इमेजिनेशन कर रहे हैं वाटरमेलन के साथ में। सो व्हाट द थॉमसन थॉट, थॉमसन ने ऐसा बताया कि ये जो है वो एक आपका वाटरमेलन है सपोज से, हाँ ना स्टूडेंट, इमेजिन कर लेना हाँ कि भाई ये वाटरमेलन ही है। ओके, इसके अंदर ये जो है वो आपका पूरा रेड पार्ट है और वो जूसी पार्ट आपका अच्छी तरह से पूरे वाटरमेलन में दिख रहा है। तो ये पूरा आपका जूसी पार्ट है। ये जो मैंने बाउंड्री छोड़ दी है वो आपकी पील जो आप रिमूव करते हो वाटरमेलन की, वो है। अब यहाँ इस तरह से अच्छी तरह से ये पूरा आपका जूसी पार्ट है स्टूडेंट, करेक्ट। अब ये जूसी पार्ट मतलब रेड पार्ट के अंदर
कहीं ना कहीं ऐसे बीज उसके जो शीट्स है वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि एक आध शीट यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, उस तरह से उसके अंदर शीट्स जो है वो प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि मैंने जो स्टार जैसा बनाया है वो है आपके शीट्स, और बाउंड्री में जो आपको गोल करके बताया है वो है आपका ज्यूसी रेड कलर का पार्ट जो वाटरमेलन का। नाउ विल जस्ट इमेजिन दिस टू एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थॉमसन मॉडल। स्टूडेंट, थॉमसन ने ये बात बताई कि जैसे वाटरमेलन के अंदर शीट्स जो है वो अच्छी तरह से पूरे ज्यूसी पार्ट में अरेंज हुए हैं, प्रॉपरली अकोमोडेट हुए हैं, उसी तरह से एटम जो एक स्फीयर है वो स्फीयर की बाउंड्री में, मतलब कि वो स्फीयर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन अंदर अच्छी तरह से अरेंज हुए हैं, वो एम्बेडेड हुए हैं, ताकि वो एटम का पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मिलके उसको न्यूट्रल बनाता है। सो दैट इज द थॉमसन बेसिक मॉडल। होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू थॉरली स्टूडेंट। इसीलिए उसे हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। अब उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट। आप तो खाते ही रहते हैं, है ना, किचन में से बाहर ही नहीं आना है। चलो, आप लोग ने पुडिंग खाया है ना। पुडिंग में ऊपर प्लम पुडिंग, मतलब कि अगर रेसिन जो है द्राक्ष होती है स्टूडेंट, तो पुडिंग में अगर मैं ऊपर से ऐसे द्राक्ष छिड़क के रखती हूँ तो क्या रहता है स्टूडेंट, उसके अंदर जो पुडिंग है पूरा आपका, वो पुडिंग में आपने रेसिन या तो प्लम जो है वो अरेंज करके रखा है, और दैट इज द नेगेटिव चार्ज। द कंप्लीट पुडिंग विच इज इन द स्फीयर शेप is your positive charge, and the plum or resin which you are arranging on the top to just give look, beautiful look or attractive look to your plum pudding is your negative charge. So that's why the Thomson atomic model is another name known as watermelon model, plum pudding model, or maybe the resin model also. So this you understand, this is your watermelon. Watermelon के अंदर पूरा ये juicy part है, that is our positive charge proton, and inside that sheets are banded with the negative charge electron. So now just we'll go with the Thomson atomic model which is written on the board. Before going to that Thomson model, students, I'll rub this about the Mason which I have written on the board. Okay students, so this is a Thomson atomic model which is known as, what is the first name? Plum pudding. Then another name student, watermelon, and next one रेसिन मॉडल। रेसिन का मतलब होता है द्राक्ष, जो जनरली आप खाते रहते हो, है ना, वो द्राक्ष मॉडल को भी हम उसको कह सकते हैं। प्लम की जगह में आप रेसिन डालते हो तो दैट इज नोन एज रेसिन पुडिंग मॉडल। Now what the Thomson model suggested? It was the first simple model proposed by Thomson after discovery of electron and proton. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जैसे डिस्कवरी हुई, थॉमसन ने अपना ये मॉडल फटाक से सजेस्ट कर दिया था, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट
he proposed the positive charge spread over the sphere, है ना, जो मैंने आपको बताया. The positive charge spread over the sphere in atom and what is the radius. मैंने इसीलिए आपको क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल और वॉलीबॉल का एग्जाम्पल दिया था. तो what is the size of that radius of the atom? So 10 raised to minus 8 centimeter is the radius of the sphere. So Thomson proposed a positive charge spread over the sphere in an atom and electron is embedded to make the atom neutral. इलेक्ट्रॉन का काम क्या है भाई? 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर का जो स्फीयर है, वो स्फीयर के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज लगा है उतना ही नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को उसमें अरेंज हो जाना है. दैट इज द वर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड वाई देन इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड. स्टूडेंट, इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? इसके अंदर ऐसा तो क्या प्रॉब्लम आया कि थॉमसन मॉडल को हमने रिजेक्ट कर दिया. सो द थॉमसन मॉडल इज रिजेक्टेड बिकॉज it does not explain the Rutherford alpha particle experiment. This experiment already we are going to study in the next part, don't worry, but you have studied in the standard 10 also, है ना, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. तो रुथरफोर्ड का ये जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था was not at all given any kind of clue that Thomson model, and that's why the Thomson atomic model was just rejected. and उसका न्यू वर्जन बाद में हम पढ़ेंगे कि इसके बाद में साइंटिस्ट को थॉमसन ने आइडिया तो दिया, है ना, शुरुआत तो की उसने कुछ आपके दिमाग में सोच लाने की, तो उसका श्रेय तो थॉमसन को देना ही चाहिए. और इसी की वजह से आज ने हम जो पढ़ रहे हैं वो फाइनल मॉडल तक हम पहुंचे हैं. सो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक everything is maybe clear to you. If you are having any of the doubt, you can contact me or you mail me also. And lastly, student, don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you and goodbye.